So now in today's session, we are going to start with the most important and interesting part of the chapter, that's about spontaneous or irreversible processes. Now, spontaneous processes are those which are taking place on its own. Spontaneous processes are those which are taking place on its own. मतलब without the help of any external agency. Without the help of any external agency. तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर if I talk about any of the natural processes which is taking place around us, they are all irreversible processes and they are taking place on its own. जैसे water flows in a dam from the higher level to a lower level. Always. Is the reverse ever possible? नहीं. ठीक है. अब ऐसा क्यों होता है उसके पीछे भी रीजन है. Whenever we say that the water is flowing from the high potential to the low potential energy, at the lower energy level, the stability is higher. And any system or any process will always try to achieve stability. Stability lowest energy पे होती है. इसीलिए heat always flows from the higher temperature to lower temperature. Current always flows from high potential to low potential. एक गरम कॉफी या गरम टी में if you dissolve sugar, the sugar will dissolve automatically on its own, क्योंकि heat already उस hot coffee का या hot tea का available है. तो ये सारे natural processes हैं और सारे natural processes हमेशा अपने आप होते हैं. ठीक है. लेकिन अगर मैं कोई एक्सटर्नल एजेंसी यूज कर लूं तो प्रोसेस को रिवर्स किया जा सकता है. मतलब डैम में अगर मैं लोअर लेवल पे एक मोटर लगा दूं और उस मोटर का काम है पानी को ऊपर खींचना, देन क्या हो रहा है, द वाटर इज नाउ फ्लोइंग फ्रॉम द लो लेवल टू द हायर लेवल. ये प्रोसेस रिवर्स हुआ, लेकिन इसमें हमने एक एक्सटर्नल फोर्स का यूज किया है इन द फॉर्म ऑफ मोटर. बराबर. So remember, all the natural processes are spontaneous, taking place on its own without the help of any external agency, and all these processes can't be reversed. तो आज के बाद जब मैं natural process बोलूं, मतलब मैं spontaneous या irreversible साथ में बोल रहा हूं. And these three words will be interchangeably used in the numericals or the MCQs as well. Natural processes are irreversible and always spontaneous. Right. So have a look at those examples which I discussed. Water always flows from higher to lower level. Heat always flows from hot body to cold body. Acid-base neutralization to form salt and water is also a spontaneous process. Acid or base spontaneously salt and water बनाते हैं. Dissolving sugar in hot coffee. Spreading of fragrance when a bottle of perfume is opened. All these are natural, irreversible, and spontaneous processes. So what are the important features of the spontaneous process? Obviously, जो irreversible process है, they will occur only in one direction and cannot occur spontaneously in another या opposite direction. These processes may be very fast or very slow, depending कौन से process की हम बात कर रहे हैं. और ये प्रोसेस तब तक होगा टिल द टाइम इक्विलिब्रियम इज रीच्ड. मतलब अगर आप परफ्यूम के बॉटल में से परफ्यूम के बॉटल को प्रेस कर रहे हो, देन द परफ्यूम विल बी रिलीज्ड फ्रॉम द बॉटल एंड इट विल ट्राई टू ऑक्यूपाई द एंटायर अवेलेबल स्पेस. एंड जैसे ही वो एंटायर अवेलेबल स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, वी कैन से अ न्यू इक्विलिब्रियम इज रीच्ड. तब तक उसका जो डिस्पर्जन है फ्रेग्रेंस का वो होता रहेगा. क्लियर? Okay. Now, thermodynamics में at the start we had discussed about the application. मैंने बोला था कि thermodynamics का सबसे important application है is to decide the feasibility of the reaction. मतलब to check whether a reaction is possible or not. मतलब अगर कोई आप chemical plant setup कर रहे हो और उसके लिए chemical reaction है A plus B जो C product को manufacture कर रहा है,
तो सबसे पहले ये चेक करोगे ना कि ए और बी मिलकर सी दे रहा है कि नहीं, मतलब आप उसका फिजिबिलिटी चेक करोगे, एंड फिजिबिलिटी इज चेक्ड बाय अ थर्मोडायनामिक पैरामीटर। ठीक है, और फिजिबिलिटी का मतलब ही स्पॉन्टेनिटी होता है, राइट? समथिंग विच इज पॉसिबल इज समथिंग विच इज टेकिंग प्लेस ऑन इट्स ओन। डू यू अग्री विद दैट? Yes, sir. ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम फिजिबिलिटी मैंने क्या बोला था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में 3 एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो फिजिबिलिटी, दूसरा टू अंडरस्टैंड द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कितना फॉरवर्ड में वो हो रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम यूज करेंगे, एंड कितना फास्ट या कितना स्लो है, उसके लिए केमिकल काइनेटिक्स लगता है। मतलब फॉर एनी रिएक्शन वी रिक्वायर थर्मोडायनामिक्स नॉलेज, the equilibrium knowledge and the chemical kinetics ka knowledge, right? Yes. So now thermodynamically, to decide the spontaneity, the very first parameter which was used was enthalpy change, which gives you the knowledge about the heat content of the system. System के अंदर कितना heat available है, that is given by the enthalpy change, that is delta H. ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी केमिकल रिएक्शन के लिए when we talk about the delta H, it can either have a positive value or a negative value. A reaction with a delta H negative is said to be exothermic. And when you say exothermic, मतलब the heat is liberated. अगर heat liberate होगा तो if I compare enthalpy of products with respect to reactants, which is going to be higher? If the heat is liberated for a chemical reaction, किसका एंथैल्पी ज्यादा होगा, प्रोडक्ट का कि रिएक्टेंट का? रिएक्टेंट का। और अगर एंथैल्पी रिएक्टेंट का ज्यादा है, मतलब इट इज हैविंग मोर एनर्जी, मोर एनर्जी मतलब लेस स्टेबिलिटी। इसका मतलब अगर मैं इस रिएक्शन के लिए स्टेबिलिटी कंपेयर करूं, कैन आई से प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल देन द रिएक्टेंट्स? For any exothermic reaction, the heat is released, the heat content of the product is lesser, hence it is more stable. Matlab, for such type of reaction, the reactant will be spontaneously converted into the products. Can I say that? Yes. Matlab, through the enthalpy, I can say reactions having a negative delta H will be spontaneous. मतलब जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं वो हमेशा स्पॉन्टेनियस होते हैं। सो वाइस वर्सा एंडोथर्मिक रिएक्शन शुड बी नॉन स्पॉन्टेनियस। क्यों ऐसा? क्योंकि एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है तो प्रोडक्ट का एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगा रिएक्टेंट से। सो स्टेबिलिटी का कंपैरिजन अगर करें तो प्रोडक्ट वुड बी लेस स्टेबल एज कंपेयर टू द रिएक्टेंट्स। मतलब इस केस में रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट का जो कन्वर्जन है वो रिएक्टेंट की तरफ फेवरेबल होगा, राइट? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो थ्रू द डेल्टा एच वी कैन से दैट रिएक्शंस व्हिच आर एक्सो आर स्पॉन्टेनियस एंड व्हिच आर एंडो आर नॉन स्पॉन्टेनियस। Now let's apply this concept to some examples. First one, acid base neutralization. Now we know that whenever a strong acid is neutralized with a strong base, there is a standard enthalpy of neutralization given by what value? Strong acid, strong base का heat of neutralization कितना होता है? There was a standard value. 7.3. How much? Sorry. 7.13. 7.13. It is negative 57.3 kilojoule per gram equivalent, या फिर किलो कैलोरी में नेगेटिव 13.7 किलो कैलोरी पर ग्राम इक्विवेलेंट था। मतलब न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस में हीट इज ऑलवेज लिबरेटेड एंड
all the neutralization reactions are exothermic. That's the reason पीछे भी हमने नेचुरल या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन का एग्जांपल लिया था. ठीक है, so it's an exothermic reaction. I can say the reaction is spontaneous. Now, what can you comment about melting of ice above 0 degrees Celsius? Is it endothermic or exothermic? Ice का melting. बर्फ का पिघलना एंडोथर्मिक होता है. और अगर ये एंडोथर्मिक है मतलब एज पर दिस रिलेशन इट शुड बी स्पॉन्टेनियस या नॉट स्पॉन्टेनियस? कैसा होना चाहिए? नॉन स्पॉन्टेनियस. लेकिन क्या बर्फ का पिघलना नॉन स्पॉन्टेनियस है? Can't it take place on its own? It can. It can. Above 0 degree Celsius अगर थोड़ा सा भी हीट उसको मिला तो अपने आप पिघलना चालू हो जाएगा. Yes or no? बर्फ आपने नॉर्मली ऐसे ही सराउंडिंग्स में रखा, ठीक है, फ्रीजर से निकाल के बाहर रख दिया, तो थोड़े टाइम के बाद आप देखोगे वो फटाफट पिघल जाएगा एंड इट वुड हैव कन्वर्टेड टू लिक्विड एंड इट डज हैपन ऑन इट्स ओन. आपने कुछ नहीं किया उसमें, आपने सिर्फ सराउंडिंग में रख दिया. बराबर. मतलब ice above 0 degree Celsius can be converted into liquid water and such reaction is endothermic. मतलब यहां से ये समझ में आता है कि रिएक्शन एंडोथर्मिक होने के बावजूद भी स्पॉन्टेनियस हो सकता है. मतलब बहुत साल पहले जब स्पॉन्टेनिटी का डिस्कशन शुरू हुआ तो सबसे पहले साइंटिस्ट ने बोला कि एंथैल्पी से हम स्पॉन्टेनिटी को डिसाइड कर सकते थे. According to them, a reaction which is exothermic should be spontaneous and endo non-spontaneous होना चाहिए. लेकिन जैसे जैसे एग्जांपल्स लेते गए तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि there are some reactions which are endo but still spontaneous. Hence, only delta H as a parameter can't be considered to decide the spontaneity. So they failed in deciding the spontaneity just by using the delta H. So look at this. Energy cannot be the only criteria for spontaneity. To overcome this problem, a new thermodynamic parameter of entropy was introduced. तो सिर्फ एंथैल्पी से स्पॉन्टेनिटी को डिसाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए एक नया थर्मोडायनामिक पैरामीटर की जरूरत पड़ी, which is एंट्रोपी. Now क्या होता है एंट्रोपी? सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में, entropy is a measure of disorderedness of system. Entropy is measure of, everyone, disorderedness of system. तो एक एग्जांपल देता हूं इसको समझने के लिए. Let's say you are giving the examination. ठीक है, तो नीट का एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है एंड आपको एक पर्टिकुलर सेंटर में अलॉटेड सीट दिया हुआ है. तो ऑब्वियसली ड्यूरिंग दैट एग्जामिनेशन you will be sitting at that allotted seat only. तो अगर हम ओवरऑल एग्जामिनेशन हॉल को देखें, can I say there is a perfect ordered arrangement of the students during the examination? हाँ कि नहीं? अरे जनता, हाँ कि नहीं? लेकिन जैसे एग्जाम खत्म हो जाता है तो इमीडिएटली आप अपने सीट से उठ जाओगे, आप बैठे तो नहीं रहोगे ना, और इमीडिएटली आप डिस्कशन शुरू कर लोगे. मैंने फर्स्ट का ये मार्क किया, तूने क्या मार्क किया, आंसर क्या है, मेरा गलत है, सही है. ऑब्वियसली दो डिस्कशन विल स्टार्ट एंड द एंटायर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट विल ब्रेक अप एंड नाउ द एग्जामिनेशन हॉल विल अपीयर टू बी हाईली डिसऑर्डर्ड. डू यू अग्री? Yeah. So during the ordered arrangement, the entropy is lesser, and when the arrangement is disordered, the entropy is larger. Matlab during the examination hall, during the examination time, sorry, the entropy was lesser. After the examination, the entropy increased. That's the basic understanding. Okay. So now, if I compare the physical states of solids to liquids to gas, what happens here? Entropy increase होता है कि decrease होता है? Increase. Obviously increase होता है,
बिकॉज सॉलिड्स में द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर ऑर्डरली अरेंज्ड, लिक्विड्स में थोड़ा डिसऑर्डर बढ़ जाता है और गैसेस में तो बहुत ही ज्यादा रैंडम हो जाता है. मतलब द डिसऑर्डरनेस इज मैक्सिमम in the gaseous state for a physical state of any system. Understood? ठीक है. अब when we talk about universe में the entropy always goes on increasing and it tends to reach the maximum value. यूनिवर्स का एंट्रोपी या डिसऑर्डरनेस हमेशा बढ़ते जाता है और वो मैक्सिमाइज होता है. क्यों ऐसा? बिकॉज यूनिवर्स में देयर आर मेनी नेचुरल प्रोसेसेस व्हिच आर टेकिंग प्लेस ऑन इट्स ओन. जैसे वाटर फ्लोइंग इन अ डैम, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी, हीट का ट्रांसफर होना, ये सारे अपने आप होते हैं, हाँ कि नहीं? अरे हाँ कि नहीं? हाँ सर. ठीक है. तो अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल लूं अबाउट द परफ्यूम वाला एग्जांपल, तो उसमें स्प्रेडिंग ऑफ फ्रेग्रेंस फ्रॉम द परफ्यूम बॉटल इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. मतलब जब तक बॉटल के अंदर वो परफ्यूम था तब तक इट वाज इन द ऑर्डर्ड अरेंजमेंट. ऑब्वियसली गैसियस है तो थोड़ा डिसऑर्डर्ड रहेगा, लेकिन जैसे ही आप परफ्यूम के बॉटल को प्रेस करोगे वो बाहर निकलेगा और अब यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल्स जितना अवेलेबल स्पेस है वो ऑक्यूपाई कर लेगा. मतलब इस केस में एंट्रोपी क्या हुई? हैज इट इंक्रीज्ड और इट हैज डिक्रीज्ड? डिक्रीज्ड. इट इज इंक्रीज्ड क्योंकि परफ्यूम के बॉटल में एक लोअर वॉल्यूम में गैस एनक्लोज था. अब जब आपने स्प्रे किया, परफ्यूम का बॉटल प्रेस किया, स्प्रे किया, तो क्या हो रहा है? वो गैस डिस्पर्स हो रहा है ना, डिस्पर्स हो रहा है. मतलब अब उसका रैंडमनेस ज्यादा होगा कि कम? ऐसा ज्यादा. ज्यादा होगा. मतलब एंट्रोपी बढ़ रहा है कि घट रहा है? इंक्रीज हो रहा है. अब आप कोई भी नेचुरल प्रोसेस ले लो, उसमें एंट्रोपी हमेशा बढ़ता है. Remember, for any natural process which is spontaneous and irreversible, the entropy always, ALWAYS, always increases. You take any natural process. तो यूनिवर्स में बहुत सारे प्रोसेस है जो नेचुरली हो रहे हैं और उन प्रोसेसेस में एंट्रोपी हमेशा बढ़ते जाता है. सो ये जो स्टेटमेंट है, this actually is the statement of the second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics. So बहुत सारे स्टेटमेंट्स हमने पहले भी डिस्कस किए. ये एक एडिशनल स्टेटमेंट है which states that the entropy of the universe always goes on increasing and it tends to achieve its maximum value. लेकिन जैसे मैंने ये बोला, आपके दिमाग में एक घंटी बजनी चाहिए, क्वेश्चन आना चाहिए कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से हमने ये बोला था कि द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज नहीं, द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स. फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? द एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, कंजर्व्ड है. एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी जस्ट कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. तो एनर्जी कंजर्व्ड है, लेकिन मैंने अभी बोला कि एंट्रोपी तो बढ़ते जाता है. तो भैया यहाँ पे डाउट क्लियर ऐसे होता है कि एनर्जी और एंट्रोपी एक दूसरे से अलग है. एनर्जी का एंट्रोपी से कोई लेना देना नहीं है. दे आर नॉट द सेम. अब ये समझने के लिए ना एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूं, ध्यान देना. मान लो मेरे पास एक थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर है, थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर है एडायाबेटिक वॉल के साथ, और मैंने उसमें एक हॉट सब्सटेंस प्लेस कर दिया जिसमें कुछ एनर्जी थी. ठीक है. तो अब मुझे बताओ, फॉर दिस पर्टिकुलर सिस्टम व्हाट इज Q? व्हाट इज हीट इक्वल टू? द फ्लो ऑफ हीट? जीरो. बिकॉज थर्मली इंसुलेटेड बोलता है कि हीट ना तो अंदर जा सकता है ना बाहर निकल सकता है.
मतलब for an adiabatic process with the insulated wall, the Q is equal to 0. Do you agree? Yes. अब what can you comment on the internal energy? Is it changing? अच्छा, हॉट बॉडी जो है ना, दैट इज एट अ टेम्परेचर T1 केल्विन, और यहाँ पर ये कंटेनर इंसुलेटेड है, तो ये हॉट बॉडी खाली हीट को डिस्पर्स करेगा। क्या उसमें उसका टेम्परेचर चेंज हुआ है क्या? सिस्टम का, हॉट बॉडी का नहीं बोल रहा हूँ, पूरे सिस्टम में जो टेम्परेचर T1 है, इज इट चेंज्ड? No. नो, उसे खाली हीट को डिस्पर्स किया। अब टेम्परेचर अगर चेंज नहीं हुआ तो डेल्टा U, which is a function of temperature, will also be 0. And as per the first law of thermodynamics, delta U equal to Q plus W. अगर दो टर्म 0 है तो W भी तो 0 होगा। Do you agree? Yes. मतलब ये एग्जाम्पल में can I say there is no energy change taking place? Yes. अरे कोई एनर्जी का चेंज हो रहा है क्या? नहीं. नहीं। बट अगर मैं यहाँ पर रैंडमनेस की बात करूं सिस्टम के अंदर, तो हॉट बॉडी, ये जितना भी एनवायरनमेंट है वो इनिशियली तो कोल्डर रहेगा, तो अपनी हीट को वो स्पॉन्टेनियसली डिस्पर्स करेगा कि नहीं करेगा? द हीट विल फ्लो फ्रॉम द हॉट बॉडी टू द कोल्डर एनवायरनमेंट। मतलब यहाँ पर ये हॉट से कोल्ड बॉडी में हीट जो जा रहा है, क्या वो एंट्रोपी को इंक्रीज कर रहा है? इज इट इंक्रीजिंग द डिसऑर्डरनेस? Yes. Yes. मतलब दो in any system or in the surrounding or in the universe एनर्जी क्या चेंज नहीं हो, लेकिन एंट्रोपी किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का हमेशा बढ़ता है। तो यूनिवर्स की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट लॉ के हिसाब से हीट इज कंजर्व्ड, द टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, कोई चेंज नहीं हो रहा है, बराबर है। लेकिन एंट्रोपी, कोई भी नेचुरल प्रोसेस जब होता है उसमें हमेशा बढ़ते जाता है, तो एंट्रोपी कीप्स ऑन increasing. Increasing. So this will give you a good overview that अगर एनर्जी कंजर्व्ड भी है सिस्टम या सराउंडिंग के अंदर या यूनिवर्स के अंदर, उसकी एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है, हमेशा मतलब ऑलवेज। So again I repeat the statement of second law, the entropy of the universe keeps on increasing and always tends to reach the max value. Here comes the next part, the entropy and entropy change. As I discussed that among the physical state, solid has the maximum ordered arrangement, hence it has the least entropy. As we move from solid to gas, randomness बढ़ता है, entropy भी बढ़ता है। ठीक है? अच्छा, ये तो हो गया फिजिकल स्टेट। अब मान लो मैं कोई केमिकल रिएक्शन यहाँ पर लिखता हूँ, PCl5 गैसियस डीकंपोज होकर PCl3 और Cl2 देता है। So 1 mole of PCl5 is decomposing, giving you 1 mole of PCl3 and 1 mole of Cl2. So tell me, if you have understood entropy, इस chemical reaction में entropy क्या हो रहा है? Is it increasing or decreasing? Increasing. Increasing. क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहा है ना, 1 मोल से 2 मोल्स हो रहे हैं, पार्टिकल ज्यादा, डिसऑर्डर्डनेस ज्यादा, और गैसियस मॉलिक्यूल्स जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा डिसऑर्डर्ड होंगे, मतलब एंट्रोपी बढ़ रहा है। डू यू अग्री? एंड इफ आई आस्क अबाउट द एंथैल्पी फॉर दिस रिएक्शन, इज इट एंडो और एक्सो? Endo. एंडो।
ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और डिकम्पोजिशन मतलब तोड़ने के लिए, फोड़ने के लिए एनर्जी लगती है, तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा ये। ठीक है, तो एंट्रोपी का पहला कॉन्सेप्ट दैट द डेल्टा एच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मोल्स, more the moles, more is the entropy. Yes or no? Yes. Okay. Second, एंट्रोपी हीट से रिलेटेड है। अगर मैं किसी ऑर्डर्ड सिस्टम में हीट दूं तो विल इट बिकम मोर डिसऑर्डर्ड और लेस? More. तो जितना हीट ज्यादा उतना एंट्रोपी ज्यादा, मतलब कैन आई से डेल्टा एस क्यू से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? हाँ कि नहीं? Yes. अब तीसरा रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए ना मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, फिर मैं उसके ऊपर आता हूं। तो मान लो हम दो एनवायरमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं, एक है वेजिटेबल मार्केट, भाजी मार्केट, सब्जी मंडी, और दूसरा है लाइब्रेरी। भाजी मार्केट वर्सेस लाइब्रेरी। ठीक है, भाजी मार्केट का एनवायरमेंट बहुत ज्यादा क्योटिक होगा, बिकॉज जो सब्जी लेने वाला है और बेचने वाला है उसमें हमेशा बार्गेनिंग होगा, क्या लेना है क्या नहीं लेना है, कितना लेना है। ठीक है, तो उसमें बहुत ज्यादा न्यूसेंस हमेशा रहेगा। कोई भी भाजी मार्केट में ऐसा साइलेंट एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा ना आपको। ठीक है, लेकिन लाइब्रेरी का एनवायरनमेंट ऑन दी अदर हैंड इज वेरी साइलेंट, अ पिन ड्रॉप साइलेंस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अब उन एनवायरनमेंट्स में मान लो एक बंदा आता है और जोर से चिल्लाने लगता है बॉम्ब है बॉम्ब है बॉम्ब है, तो उसका इफेक्ट कहां पर ज्यादा होगा, भाजी मार्केट में या लाइब्रेरी में? उस बंदे का बोलने का इफेक्ट और उसमें Library. रिएक्ट करने का इफेक्ट यहाँ पर लाइब्रेरी में silence होगा। ठीक है, बिकॉज लाइब्रेरी का एनवायरनमेंट लेस कियोटिक था, भाजी मार्केट का एनवायरनमेंट ऑलरेडी कियोटिक था, उसमें और भी कुछ कियोस होगा तो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो अब उसी के रिलेटेड एक और एग्जांपल देता हूं और फिर हम कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं। मान लो मेरे पास दो कंटेनर्स है जिसमें देयर इज हॉट वाटर प्लेस्ड। ठीक है, एक में द वाटर इज ऑलरेडी एट अ हायर टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्री सेल्सियस और दूसरे में द वाटर इज एट अ 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दोनों में पानी गर्म है, लेकिन एक ज्यादा गर्म है 80 डिग्री सेल्सियस पे, एक कंपैरेटिवली कम गर्म है 25 डिग्री सेल्सियस पे। अब इन दोनों को मैं इक्वल अमाउंट ऑफ हीट दे देता हूं। ठीक है, 100 जूल्स दोनों को मैंने सप्लाई कर दी प्लस क्यू। तो मुझे बताओ यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का जो रैंडमनेस है वो किस में ज्यादा होगा, 80 वाले में या 25 वाले में? 25. समझा? अगर आपने आंसर 25 बोला है मतलब यू कैन नाउ रिलेट दैट दिस इज द लाइब्रेरी वाला एनवायरनमेंट जहां पे मॉलिक्यूल इनिशियली शांत थे, इतने ज्यादा डिसऑर्डर्ड नहीं थे। तो अब थोड़ा सा भी हीट में दूं ना तो उसमें डिसऑर्डर्डनेस का इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। और ये वेजिटेबल मार्केट वाला एग्जांपल हो गया। 80 डिग्री पे मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी ज्यादा कियोटिक है ही, उसमें अगर आप उतना ही अमाउंट ऑफ हीट दो तो उतना ज्यादा डिसऑर्डर्डनेस में फर्क नहीं पड़ेगा, इंक्रीज होगा। मैं कंपैरेटिवली बात कर रहा हूं, आ रहे समझ में? So now can I say the entropy change is higher when the temperature is low. lower? मतलब the entropy का change and the temperature are Inversely proportional. inversely proportional. Super. ठीक है, दूसरा नेक्स्ट पॉइंट, एंट्रोपी जो है इज इट अ स्टेट फंक्शन और अ पाथ फंक्शन? State function. स्टेट फंक्शन मतलब वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, कौन से पाथ से जाते हो उससे एंट्रोपी का कोई लेना देना नहीं है। एंड इज एंट्रोपी एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी? Extensive. इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये मोल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और मोल्स के ऊपर डिपेंड करता है मतलब मास के ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर डिपेंड करता है मतलब वो एक्सटेंसिव है।
ठीक है, ये सारे पॉइंटर्स आप अपने नोट्स में लिखते जाओ। एंट्रोपी, एंट्रोपी चेंज, ये सब जो एडिशनल चीजें हैं वो लिखते जाओ। ये एग्जाम्पल्स आपको यूनिकली मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूं ये समझने के लिए बहुत हेल्प करेगा। फाइन। So now once again summarizing, entropy or entropy change is dependent on the moles, on the heat supplied, inverse to temperature, it's a state function and an extensive property. So with this, now coming to some examples wherein we have to predict the sign of delta S. ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल में बता दिया, अब आप इसमें बताओ। So in the first example, N2O4 से 2NO2 मिल रहा है. What is happening to entropy? Increasing. 1 से 2 मोल्स हो रहा है, मतलब पॉजिटिव। नेक्स्ट, Increasing. and why do you feel that it is increasing? No, it's the same. It's the same. सॉलिड्स में एंट्रोपी का चेंज इतना ज्यादा नहीं होता है क्योंकि सॉलिड्स हैव अ वेरी ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, है ना। तो सॉलिड्स के लिए हमको चेक नहीं करना है, सिर्फ गैसियस मोल्स को चेक करो। एंड यहाँ पर अगर डेल्टा एनजी का फंडा अप्लाई करे तो 0 है, मतलब मोल्स में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, तो डेल्टा एस अप्रोक्सीमेटली 0 है, हाँ कि नहीं। नेक्स्ट में बोलो, हेबर्स प्रोसेस, एंट्रोपी डिक्रीजेस 4 से 2 मोल्स। नेक्स्ट में जल्दी, पॉजिटिव, क्योंकि सॉलिड से गैस आ रहा है। कोई भी सॉलिड को डिकम्पोज करो और उसमें से गैस अगर रिलीज होगा तो हमेशा एंट्रोपी बढ़ता है, और ऐसे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस भी होते हैं। नेक्स्ट, गैस टू सॉलिड डिक्रीजिंग। नेक्स्ट, Cl2 to 2Cl इंक्रीजिंग। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं जहां पर आपको प्रोसेसेस के लिए एंट्रोपी का साइन प्रेडिक्ट करना होता है। ठीक है, आगे, आइडेंटिफाई विच मेंबर ऑफ फॉलोइंग पेयर्स हैज लार्जर एंट्रोपी। अगेन, किसमें ज्यादा है किसमें कम है। सो हीलियम गैस इन अ वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर और हीलियम गैस इन अ वॉल्यूम ऑफ 5 लीटर, बोथ एट 25 डिग्री सेल्सियस। बताओ एंट्रोपी किसमें ज्यादा होगा। 5 लीटर में। परफ्यूम वाला ही एग्जांपल है ना, परफ्यूम का बॉटल मान लो आधा लीटर है, जैसे आप परफ्यूम को स्प्रे करते हो वो जितना भी अवेलेबल वॉल्यूम है उसमें डिस्पर्स करता है, तो डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो 5 लीटर में डिसऑर्डरनेस ज्यादा होगा। नेक्स्ट, O2 gas at 1 atmosphere versus the same gas at 10 atmosphere, both at same temperature. 1 atmosphere, because 10 atmosphere में the pressure is very high, the molecules are coming close, and closeness मतलब disorderedness घट रहा है, यानी 1 atmosphere में the entropy will be larger. Next, ethanol liquid versus gas. Obviously gas. 5 mole of neon versus 2 moles of neon. More the moles, more is the entropy. That's it. Understood? ये सब मैंने नोट्स में दिया हुआ है। So now, having understood this, we come to the entropy का formula. So the delta S is basically the entropy change, and that is equal to the final entropy minus initial entropy. ठीक है, अब थर्मोडायनामिक्स में मोस्ट ऑफ द पैरामीटर्स का एब्सोल्यूट वैल्यू में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, चाहे एंथैल्पी हो, इंटरनल एनर्जी हो, हमने हमेशा डेल्टा एच या डेल्टा यू की बात की है। एच या यू इंडिविजुअली वी डोंट कंसिडर बिकॉज इट्स डिफिकल्ट टू बी कैलकुलेटेड, बट एंट्रोपी जो होता है ना उसका एब्सोल्यूट वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, उसके लिए थर्ड लॉ हम आगे डिस्कस करेंगे।
बट एक पॉइंट हमेशा याद रखना, दैट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी कैन बी एस्टिमेटेड, कैन बी डिटरमाइंड। मतलब जब हम S फाइनल माइनस S इनिशियल लिखते हैं ना, तो इसकी वैल्यूज हम कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके बाद डेल्टा S को कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा बात, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि एंट्रोपी Q से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड T से इनवर्स है। तो एंट्रोपी का रिलेशन ही, फॉर्मूला ही आ जाता है दैट इट्स इक्वल टू द हीट अपॉन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर Q बाई T, QT। एंट्रोपी इज Q बाई T, QT। ठीक है, लेकिन एक चीज आप देखो, यहाँ पे QRE भी लिखा है, रिवर्सिबल लिखा है। अब ऐसा क्यों लिखा है, उसका रीजन, एंट्रोपी क्या है, स्टेट फंक्शन की पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन। यानी मैं A से B रिवर्सिबल में जाऊं या इरिवर्सिबल पाथ से जाऊं, क्या मेरे एंट्रोपी में फर्क आएगा? नहीं। तो कैन आई से डेल्टा S रिवर्सिबल एंड डेल्टा S इरिवर्सिबल आर इक्वल? डू यू अग्री विद दिस? समझाइए। ठीक है, अब प्रीवियसली मैंने बोला था कि सारे नेचुरल प्रोसेसेस विच आर स्पॉन्टेनियस एंड इरिवर्सिबल, उनके लिए द एंट्रोपी ऑलवेज गोज ऑन इंक्रीजिंग। मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के लिए तो हम हमेशा एंट्रोपी को ग्रेटर देन जीरो मानते हैं। मतलब ऐसा होता भी है क्योंकि बहुत सारे नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं यूनिवर्स में, तो उसमें हमेशा डिसऑर्डरनेस बढ़ते जाएगा। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि अगर ये सेम प्रोसेस को इरिवर्सिबल पाथ से कैरी आउट करते हैं तो उसमें कितना हीट लगेगा, क्योंकि इरिवर्सिबल वो है जो नेचुरली होता है। अगर मुझे कोई प्रोसेस एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू करवाना है तो वो रिवर्सिबल होगा, हाँ कि नहीं? Yes. तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, अगर उसको रिवर्सिबली किया जाए तो उसमें क्यू कितना लगेगा, वो कैलकुलेट अगर किया जाए, देन इट इज कॉल्ड क्यू रिवर्सिबल। दैट्स व्हाई द एंट्रोपी इज मेजर्ड एज द हीट when the process is carried out reversibly over the temperature, and the unit of the entropy as per the formula will be heat per unit temperature, that is joule per Kelvin। और अगर ये पर मोल के लिए डिफाइंड है तो जूल पर केल्विन पर मोल आ जाएगा। समझा यूनिट? यस और नो? Yes. इट्स हीट अपॉन द टेम्परेचर, तो जूल पर यूनिट केल्विन। ठीक है, अब आगे के दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट। When I say total entropy of an isolated system where universe was the example, then the total means the system का entropy plus surrounding का entropy। Isolated system यानी delta S of the universe will be equal to sum of the system and the surrounding, right? अब अगर कोई प्रोसेस रिवर्सिबल है तो whatever is the system का entropy, that will be equal to surrounding का entropy but opposite in sign। सिस्टम एंड सराउंडिंग की एंट्रोपीज कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस में इक्वल एंड ऑपोजिट होगी, इसलिए जब उसका सम करेंगे तो यूनिवर्स का एंट्रोपी हमेशा जीरो होगा। बराबर? यस और नो? इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस द यूनिवर्स एंट्रोपी इज ऑलवेज जीरो। अरे बट मैंने तो बोला था कि द यूनिवर्स ऑलवेज, द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। Is that true for a reversible process? No, it was true for irreversible process, for the natural processes, for the process which are taking place spontaneously। Reversible process natural नहीं होते हैं, ठीक है? But in an irreversible process, the universe का entropy always goes on increasing। So this means that there is an increase in entropy of universe and that is a spontaneous change। और यही तो आपका
SLOT का स्टेटमेंट भी है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का। क्लियर? तो एक चीज गार्ड बांध लो ये स्लाइड से कि रिवर्सिबल प्रोसेस में यूनिवर्स का एंट्रोपी 0 होता है, बट इरिवर्सिबल प्रोसेस में हमेशा पॉजिटिव होता है एंड इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, अब अगर कोई इक्विलिब्रियम प्रोसेस है, जैसे फ्यूजन है, वेपराइजेशन है, या फिर सब्लिमेशन है, ऑल आर इक्विलिब्रियम प्रोसेस which takes place at a constant temperature and pressure, हाँ कि नहीं? तो ऐसे इक्विलिब्रियम प्रोसेसेस के लिए what is heat at a constant pressure given by, what is it equal to? QP equals to what? Delta H. Delta. Superb. QP is equal to delta H, मतलब हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंथैल्पी के बराबर होता है और हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। ये दो चीज भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर मैं डेल्टा एस को Q बाई टी से रिलेट करूं तो इक्विलिब्रियम प्रोसेस में कैन आई से दिस Q इज इक्वल टू QP एंड दिस इन टर्न इज इक्वल टू व्हाट? QP is equal to what? Delta. डेल्टा एच। इसीलिए फ्यूजन जैसा इक्विलिब्रियम प्रोसेस हो तो उसका एंट्रोपी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बाय टेम्परेचर। और वो टेम्परेचर अगर मैं आइस का एग्जांपल लूं तो 273.15 केल्विन होता है कि नहीं? Yes. वेपराइजेशन में एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अपॉन द टेम्परेचर वो 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। और सब्लिमेशन के लिए एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बाय द टेम्परेचर ऑफ सब्लिमेशन। मतलब इक्विलिब्रियम प्रोसेसेस के लिए द एंट्रोपी सिंपली इक्वल टू डेल्टा एच ओवर टी। अंडरस्टूड? Yes. So what अब is slot? What is slot is which second law of thermodynamics। I guess. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का शॉर्ट फॉर्म है। चलो, so now in general we have delta S of the system given by a formula NCV ln T2 by T1 plus NR ln V2 by V1। इस फॉर्मूला को पहले रट लो, 3 बार बोलो, उसके बाद इसका डेरिवेशन भी बताता हूं और फिर उसका एप्लीकेशन भी बताता हूं। पहले तो रट लो। क्या? डेल्टा एस ऑफ सिस्टम इज NCV ln T2 by T1 plus NR ln V2 by V1। Once again, NCV ln T2 by T1 plus NR ln V2 by V1। ठीक है, अब इस CV को अगर मैं CP में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मुझे CP माइनस CV इक्वल टू R का रिलेशन पता है। तो CV को मैं CP माइनस R अगर लिखूं और फिर रीअरेंज करो तो अब फॉर्मूला चेंज हो जाता है एंड इट चेंजेस टू NCP ln T2 by T1 प्लस NR ln P1 by P2। याद रखने का सिंपल तरीका है, CV की जगह CP आ जाता है और वॉल्यूम के रेशियो की जगह प्रेशर का रेशियो आ जाता है। V2 by V1 की जगह P1 by P2 आ जाता है। ठीक है, अब मैं इसका डेरिवेशन बताने जा रहा हूं जो केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर सिर्फ फॉर्मूला भी याद रखा तो भी चल जाएगा, बट फिजिक्स में इसका डेरिवेशन आपको इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ। छोटा सा डेरिवेशन है तो बता देता हूँ। ठीक है, so let's take the first law of thermodynamics, a relation which is given as delta U equal to Q plus W. Now for a small change, I can write this expression as du equal to Q plus dW. Q को dQ लिखो या ना लिखो चलेगा, क्योंकि मैंने बोला था हीट इज एन एनर्जी फ्लो, है ना। अब W जो होता है दैट इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इनटू dV। ठीक है, अब हम डेल्टा एस सिस्टम को डिफाइन कैसे कर रहे थे? व्हाट इज द फॉर्मूला? सिंपल वाला, डेल्टा एस सिस्टम व्हाट अपॉन व्हाट? Q by जल्दी, T.
Q रिवर्सिबल बाई T। ठीक है, अब अगर मैं रिवर्सिबल प्रोसेस को कंसिडर करूं, तो रिवर्सिबल प्रोसेस इज दैट प्रोसेस which takes place in infinite number of steps, and at every step the system and surroundings are in equilibrium। मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अगर मेरा एक्सटर्नल प्रेशर PEX है, तो इक्विलिब्रियम पे अंदर का जो प्रेशर ऑफ द गैस है दैट विल बिकम व्हाट, इक्वल होगा कि नहीं होगा, है ना। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में P एक्सटर्नल P गैस के बराबर होता है, तो इसको मैं P लेता हूं बाय कन्वेंशन। तो अब अगर मैं Q को Q रिवर्सिबल लिखूं तो P एक्सटर्नल को P लिखूं तो चलेगा कि नहीं, बोलो जनता। Yes or no? Yes. So now the Q reversible is equal to du minus PdV। अगर इसको T से डिवाइड कर लो तो मेरा डेल्टा S सिस्टम निकल के आता है कि नहीं आता है। So this is divided by T and this is also divided by T। अब हमें पता है du जो होता है वो QV होता है, and that QV in turn is given by NCV dt। Heat at constant volume is equal to NCV dt, हाँ कि नहीं। तो इसको मैं यहां पर नेक्स्ट स्टेप में लिख रहा हूं NCV dt by T and P upon T for an ideal gas। अब P ऑफ द गैस है तो मैं PV इक्वल टू nRT का रिलेशन ले लूं और उसके थ्रू P अपॉन T को nR अपॉन V लिखो, चलेगा क्या, बोलो बोलो बोलो। तो ये हो जाएगा nR dV अपॉन V, nR dV अपॉन V। कुछ गड़बड़ किया मैंने, ये प्लस हो जाएगा, सॉरी, है ना। ठीक है, तो इसको मैं DS सिस्टम लेता हूँ स्मॉल चेंज के लिए। अब अगर मैं डेल्टा एस ढूंढना चाहता हूं तो आई हैव टू जस्ट इंटीग्रेट दिस, and when I integrate, this will be integrated from the temperature T1 to T2 and this part will be integrated from the volume V1 to V2। अब आपको पता है इंटीग्रेशन dt over T is ln T, और जब लिमिट्स अप्लाई करोगे ln T2 by T1 होगा कि नहीं होगा, बोलो जरा, अरे हाँ या ना। और सिमिलरली दूसरी तरफ nr ln V2 by V1 आ गया फॉर्मूला, हेंस प्रूव्ड। तो ये डेरिवेशन मैंने नोट्स में नहीं दिया है बिकॉज जरूरत नहीं है, फिर भी बता दिया। आपको लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड यू कैन राइट इट अलोंगसाइड फॉर योर रेफरेंस। फाइन। So now using this formula we are going to describe the entropy for different processes। Here we are to the important part of this thermodynamic parameter, the entropy calculation for different processes। Isothermal process is a process where the temperature remains constant। तो T1 T2 इक्वल हो जाता है। अगर T1 T2 इक्वल हो जाता है तो पहला टर्म ln of 1 हो जाएगा and that will become 0। yes or no? Yes. तो मतलब डेल्टा एस सिस्टम आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या बचा, nr ln V2 by V1। और कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग का एंट्रोपी इक्वल एंड ऑपोजिट होता है, मतलब ये माइनस nr ln V2 by V1 होगा, सच दैट यूनिवर्स या टोटल एंट्रोपी हमेशा 0 होगा, हेंस प्रूव्ड रिवर्सिबल के लिए। लेकिन अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो आपका एक्सटर्नल प्रेशर और गैस के प्रेशर में काफी बड़ा डिफरेंस होगा।
इसलिए सिस्टम का एंट्रोपी विल बी गिवन बाय द सेम फॉर्मूला nr ln v2 by v1, बट जो सराउंडिंग का एंट्रोपी है that would be given as minus P external delta V by T, because now the pressure is fixed and it is not equal to the pressure of the gas. तो जैसे हमने P external को P ले लिया था वो irreversible में नहीं होगा, और इसी की वजह से जब आप इसको ऐड करोगे तो आपको एंट्रोपी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव दिखाई देगी. एंड दैट्स व्हाट द फैक्ट वाज कि फॉर एनी इरिवर्सिबल प्रोसेस, एनी, चाहे वो आइसोथर्मल हो, एडायाबेटिक हो, टोटल एंट्रोपी या यूनिवर्स की एंट्रोपी तो हमेशा इंक्रीज ही होती है. इट्स ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज पॉजिटिव. अंडरस्टूड? अब एडायाबेटिक. Adiabatic is a process in which there is no transfer of heat between the system and surrounding. अब डेल्टा इसको हम डिफाइन ही करते हैं Q by T. तो what will happen to this ratio? 0. 0 हो जाएगा. मतलब एडायाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम का एंट्रोपी 0, तो सराउंडिंग इक्वल एंड ऑपोजिट होता है, वो भी 0, और टोटल तो हमेशा 0 होना ही चाहिए. कोई भी प्रोसेस हो, चाहे रिवर्सिबल एडायाबेटिक हो, रिवर्सिबल आइसोथर्मल हो, ये पार्ट तो याद रख लो 0 ही है. ठीक है. और इरिवर्सिबल में डेल्टा एस सिस्टम का पॉजिटिव होता है. Now this you can understand from the insulated container वाला एग्जाम्पल. क्या बताया था उसमें कि अगर कोई हॉट सब्सटेंस को आप प्लेस कर लो तो एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन हॉट से कोल्डर की तरफ जाने की वजह से उसकी एंट्रोपी वाज गोइंग ऑन increasing. So for any irreversible process the delta S has to be positive. सराउंडिंग का यहाँ पर 0 हो जाएगा, लेकिन टोटल एंट्रोपी तो पॉजिटिव ही रहने वाला है. अब इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. मैं जब एमसीक्यू बताऊंगा आपको क्लियर हो जाएगा हाउ टू सॉल्व दी एमसीक्यूज. आगे आइसोकोरिक. Now isochoric is a process at a constant volume. अगेन पीछे जाएंगे हमारे जनरल फॉर्मूला में, ये वाला टर्म इक्वल होने की वजह से उड़ जाएगा. बचा क्या? n cv ln t2 by t1. आ गया फॉर्मूला? यस और नो? बोलो. और कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, गिलो-सक्स लॉ. तो T2 by T1 की जगह P2 by P1 लिखा तो भी चलेगा कि नहीं? और आइसोबारिक में P1 और P2 बराबर हो जाता है. तो अब जो फॉर्मूला यूज करेंगे NCP ln of T2 by T1 प्लस NR ln of P1 by P2, और वो P1 P2 इक्वल होने की वजह से टर्म गायब हो जाएगा. बचा क्या? NCP ln T2 by T1. इन दोनों में फर्क खाली यही है, CV और CP का. और कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम टेम्परेचर से चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग V प्रोपोर्शनल टू T. तो T2 by T1 की जगह V2 by V1 अगर डेटा में दिया है तो वो यूज कर लो, एंड यू आर एबल टू फाइंड द एंट्रोपी फॉर ऑल द डिफरेंट प्रोसेसेस. क्लियर? चलो तो अब कुछ MCQs देखते हैं इसके रिलेटेड. If you have understood the concepts and the formulas, now the MCQs should be very simple. Let's start. Section E का second. Predict which of the following reaction has a positive entropy change. Entropy जिसमें बढ़ता है. What about the first one? Ions are getting converted into solid. Can that have a positive entropy or it will have a negative entropy? Negative. Negative. क्योंकि aqueous ions disordered है और solid तो ordered है, तो entropy negative होगा. Next में positive. Solid से 2 gaseous moles आ रहा है, और थर्ड में
Positive. पॉजिटिव। तो एंट्रोपी का पॉजिटिव चेंज सेकंड एंड थर्ड में है, ऑप्शन थर्ड इज द आंसर। नेक्स्ट, which of the following reaction is associated with a negative change in entropy? ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ चुके हैं नीट में। तो पहला वाला, the moles are increasing so the entropy is Positive. positive. The moles of the gas are increasing, again the entropy is Positive. graphite solid plus O2 gaseous giving 2CO gaseous, entropy is Increase. Positive. increased, क्योंकि सॉलिड को तो आप इग्नोर कर लो, 1 से 2 हो रहा है मतलब एंट्रोपी बढ़ रहा है। एंड एसिटिलीन गैसियस कन्वर्टेड टू बेंजीन लिक्विड, अरोमेटाइजेशन का रिएक्शन है, क्या हो रहा है? Decrease. डिक्रीज, हेंस नेगेटिव चेंज ऑप्शन फोर्थ में है, दैट्स द आंसर। आगे, फॉर द गैस फेज डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5 to PCl3 and Cl2, व्हाट इज डेल्टा H एंड डेल्टा S? कर चुका हूं ये, बोलो। Both are positive. बोथ आर पॉजिटिव। एक तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है तो एंडोथर्मिक होगा, गैसियस मोल्स बढ़ रहे हैं तो एंट्रोपी पॉजिटिव होगा। Which of the following statement is true? The entropy of the universe बोलो, Increases and tends towards maximum value. and that is the statement of Second law. the entropy of the universe because of the various natural processes taking place around us in the universe always increases the entropy। इसलिए यूनिवर्स का एनर्जी कंजर्व्ड है लेकिन एंट्रोपी हमेशा बढ़ता रहता है, always increases and tends towards maximum value। Now the important part, entropy ka calculation for different processes। Look at the question. When 2 moles of an ideal gas, Cp is 5/2 R, is heated from 300 to 600 Kelvin at constant pressure, the change in entropy of gas is, बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? Isobaric वाला. सुपर, आइसोबारिक। बोलो फॉर्मूला क्या था? NCPln T2 by T1. बस, तो आइसोबारिक के लिए सिस्टम का या गैस का एंट्रोपी इज गिवन बाय NCP ln of T2 by T1। बच्चा वाला कैलकुलेशन, 2 times Cp is 5/2 R into ln of 600 by 300 is 2, 2 2 2, बचा क्या? 5 R ln 2, ऑप्शन 3। अंडरस्टूड? Yes, sir. आगे, the entropy change when 2 moles of ideal monoatomic gas is heated from 200 to 300 degrees Celsius reversibly and isochorically. Which formula? NCV. NCV ln of T2 by T1। अच्छा, CV तो मुझे यहाँ दिया नहीं है, तो what should I do? F/2. It is to be taken for monoatomic gas। अब monoatomic का Cp था 5R/2, Cv था 3R/2, तो इनडायरेक्टली Cv तो हमें पता है, मतलब अब जस्ट सब्स्टिट्यूट 2 moles into Cv 3R/2 into ln 573 upon 473 T2 by T1 2 to 2, तो आंसर है 3R ln of द टेम्परेचर का रेशियो। समझा? समझा? Yes, sir. ऐशा, One second, I'm trying to understand. क्या नहीं समझा? आइसोकोरिक का फॉर्मूला NCV ln T2 by T1, अब मोनोएटॉमिक का Cp और Cv 5R/2 और Cv 3R/2, Yes, sir. तो मैंने Cv ले लिया 3R/2, बाकी टेम्परेचर केल्विन में 573 और 473,
सब्स्टिट्यूट कर लो, हो गया। Yeah, got it. Next, if 1 mole of an ideal gas Cp given is expanded isothermally at 300 Kelvin until its volume is tripled, then change of entropy of gas is what to use? Isothermally. Fast. n Cv ln T2 by T1 plus n R ln V2 by V1. कौन सा टर्म उड़ेगा, पहला कि दूसरा आइसोथर्मल के लिए? तो बचा क्या, वो आपका फॉर्मूला ना, नथिंग इज टू बी मार्क्ड अप, खाली जनरल फॉर्मूला याद रखो, उससे आएगा NR ln V2 by V1। अब मोल्स एक है, R वैसे ही रखना है, ln ऑफ वॉल्यूम ट्रिपल्ड है मतलब 3V1 अपॉन V1, ये कैंसल, R ln 3 should be the answer, option 4। Understood? Yes, sir. Next, 1 mole of a diatomic ideal gas at 25 degrees Celsius is subjected to expand reversibly and adiabatically to 10 times of its initial volume. To calculate the change in entropy during expansion. 0. खत्म। रिवर्सिबल adiabatic के लिए एंट्रोपी का चेंज हमेशा 0 होता है, डायरेक्ट आंसर। Q 0 है तो Q by T भी 0 हो जाएगा। Next, when 2 moles of an ideal gas is expanded adiabatically and reversibly from 1 liter to 8 liter at some temperature, वो missing है 300 Kelvin, the change in entropy of universe is 0. रिवर्सिबल adiabatic में सिस्टम सराउंडिंग और टोटल एंट्रोपी वाज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर डेटा बहुत सारा दिया है बट कोई यूज नहीं है उसका, क्योंकि adiabatic में अगर एंट्रोपी पूछा रिवर्सिबल प्रोसेस में तो आंसर 0 0 0 ही होगा। नेक्स्ट, कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज ऑफ द गिवन रिएक्शन। द मोलर एंट्रोपीज आर गिवन इन ब्रैकेट्स आफ्टर ईच सब्सटेंस। जैसे मैंने बोला था कि एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ द सब्सटेंसेस कैन बी डिटरमाइंड, तो ये जो ब्रैकेट में दिया है ना मोलर एंट्रोपीज, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो अब अगर मुझे इस रिएक्शन का एंट्रोपी ढूंढना है तो इट विल बी डेल्टा S which will be equal to summation entropy of all the products minus reactants. Yes or no? Yes, sir. अब समेशन मतलब क्या, PbO का 2 मोल्स का एंट्रोपी 66.5 तो ट्वाइस आ जाएगा, फिर SO2 के लिए 2 मोल्स का 248.2 मल्टीप्लाई कर लो, माइनस PbS का 1 मोल के लिए 91.2 तो 2 मोल्स के लिए डबल कर लो, एंड ऑक्सीजन के लिए 3 times 205.1। अब do the calculation and you will get the answer in joule per Kelvin. That's the entropy change for the reaction. Fine. Next, the change in entropy for the fusion of 1 mole of ice is, melting point ice का 273 Kelvin है, molar enthalpy of fusion for ice is given 6 kilojoule per mole। क्या करेंगे इसके लिए, एंट्रोपी फ्यूजन का ढूंढना है। Delta H by करेक्ट, डेल्टा H by T। इक्विलिब्रियम प्रोसेसेस अगर होते हैं तो उसमें सिंपली डेल्टा H अपॉन T का रेशियो ले लो एंट्रोपी ढूंढने के लिए। तो फ्यूजन का एंट्रोपी विल बी इक्वल टू enthalpy of fusion upon the temperature of fusion, which is equal to 6000 joule per mole divided by the temperature of 273 Kelvin। कैलकुलेट करोगे तो 21.97 का वैल्यू आएगा,
joule per mole per Kelvin. Understood? So this section covers the entropy related numericals with examples for all the processes covered. Isochoric, isobaric, adiabatic और isothermal चारों के वेरिएशंस यहाँ पर हमने देख लिया. इक्विलिब्रियम प्रोसेसेस है तो एंट्रोपी को फाइंड करने के लिए एंथैल्पी अपॉन टेम्परेचर का रेशियो लेना है. यहाँ तक समझा? Yes. ओके. अब आगे छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं. Thermodynamics में when we talk about the spontaneity of any process or the reaction, could delta H as a standalone parameter define the spontaneity? Was it able to define? Yes or no? No. No. तो ये फेलियर की वजह से एक और थर्मोडायनामिक पैरामीटर को इंट्रोड्यूस करना पड़ा. व्हाट वाज दैट? Entropy. एंट्रोपी. अब इन दोनों को अगर हम रिलेट करें तो इन दोनों से एक सिंगल थर्मोडायनामिक पैरामीटर आता है, दैट इज कॉल्ड डेल्टा जी, विच इज गिब्स फ्री एनर्जी चेंज. जी माने गिब्स एंड इट्स कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज. अब इसको फ्री एनर्जी क्यों बोलते हैं उसके ऊपर भी आता हूं. बट गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला विच रिलेट्स द एंथैल्पी एंड एंट्रोपी इज delta H minus T delta S. Delta H minus T delta S. इसको बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन. गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, खाली नाम याद रखना. ठीक है. अब गिब्स एनर्जी होता क्या है? तो गिब्स एनर्जी फर्स्ट ऑफ ऑल इज अ स्टेट फंक्शन. All the energies are state functions. Heat and work जो energy flow को define करते हैं वो path function होते हैं. तो Gibbs free energy state function है and it's a measure of maximum or useful work from a reversible reaction at the constant temperature and pressure. अब इसको समझने के लिए ना एक simple example देता हूं. अपना body भी एक system है. It's an open system, right? So when we consume food, the food in our body is converted into energy by some metabolic reactions. Agreed? Yes. फिर हम कुछ काम करते हैं, हम हाथ को वेव करते हैं या रब करते हैं या कुछ भी टाइप का वर्क करते हैं, तो बॉडी अपना एनर्जी यूज करेगा. Now, does the body use entire available energy to do the work? No. क्या आप रात भर या दिन भर काम करते जाओ ऐसा होता है क्या? है ना, नहीं होता है. अपना बॉडी एक लिमिट तक वर्क कर सकता है जब तक अपना बॉडी एनर्जी सप्लाई करेगा. एक बार वो खत्म हो जाता है या मैक्सिमम लिमिट तक रीच हो जाता है, बॉडी अपने को सिग्नल देता है, भाई अभी एनर्जी खत्म हो गई है, कुछ खाओ पियो, एनर्जी को जनरेट करो. बराबर? हाँ कि नहीं? तो मान लो कुछ आपने फूड कंज्यूम किया और 100 जूल की एनर्जी बॉडी में जनरेट हुई, तो विल दैट एंटायर 100 of joule of heat or the energy be converted into work? Can it be 100% converted into work? पॉसिबल है या नहीं? No. No. नहीं. कुछ एनर्जी बॉडी अपने मेटाबॉलिक रिएक्शंस को करने में कंज्यूम करेगी कि नहीं? एंड ये तो सेकेंड लॉ भी बोलता है कि 100% हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट करना. क्या पॉसिबल नहीं है? ठीक है. 100% हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू 100% वर्क. दिस वाज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आल्सो. बराबर? मतलब किसी भी सिस्टम में अगर आपने कुछ इनपुट दिया 100 जूल का एग्जाम्पल, तो आउटपुट में 100 जूल आएगा क्या? No. नहीं, क्योंकि सिस्टम के अंदर कुछ लॉसेस होगा और उसकी वजह से आउटपुट हमेशा इनपुट से कम होगा.
अब जो इनपुट होता है ना, दैट इज एक्चुअली डिफाइंड बाय द डेल्टा एच, द हीट गिवन, और आउटपुट जो होता है दैट इज द मैक्सिमम यूजफुल वर्क विच इज गिवन बाय डेल्टा जी। डेल्टा जी। यानी इस सिस्टम का एफिशिएंसी कैसे डिफाइन करेंगे बच्चा? एफिशिएंसी, हाँ, डेल्टा एच माइनस डेल्टा जी। डेल्टा जी आउटपुट है, डेल्टा एच इनपुट है, एफिशिएंसी कैसे निकालते हो? डेल्टा जी माइनस क्यों करोगे? डेल्टा डेल्टा जी आउटपुट अपॉन डेल्टा एच इनपुट इनटू 100, राइट ऐशा? यस सर। है ना? तो सिस्टम की एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं होगी। 100% होने के लिए डेल्टा जी डेल्टा एच के बराबर होना चाहिए, जो कि प्रैक्टिकली अचीवेबल नहीं है। ठीक है, इसी चीज को कार्नोट साइकिल में जब बढ़ा था, अरुषि आपका डाउट, तो उसमें हीट सोर्स और हीट सिंक का बात किया था, और जितना टेम्परेचर का डिफरेंस ज्यादा होगा उतना एफिशिएंसी ज्यादा होगा। तो कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी was given as the temperature of the sink minus the temperature of the source divided by sink temperature into 100। ये था कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी। और ये पूरा हीट इंजन बताया था ना कि ये प्रोसेस को रिवर्सिबल करने के लिए आप जो हीट निकल रहा है उसको एक कोल्डर एनवायरनमेंट में रख दो, तो टेम्परेचर कम होगा तो वापस वो रिवर्स करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर ये पूरा हीट इंजन का प्रोसेस रिवर्सिबल हो जाएगा और उसमें आप एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हो। गॉट इट? यस सर। करेक्ट। So finally, we have come to a point where we will be able to decide the spontaneity for any given reaction. अगर कोई chemical reaction है तो उसकी spontaneity will be decided by the thermodynamic parameter given by Gibbs free energy. कैसे? उसके लिए stay tuned for the next session. So when we will continue the next session, we will discuss about this part and we will continue from the Gibbs energy. Fine. Clear यहाँ तक? यस यस सर। Okay.